Hello everyone, welcome to the YouTube channel of GiveMock. I hope you all are doing good and you must be wonderful and you must be working hard for your upcoming JIB and CIB examination. So guys, today we will talk about the recent change in syllabus for JIB and CIB which has been introduced by the IABF. Okay. So most of you will be having the doubts around the revised syllabus and revised exam pattern of JIB and CIB. तो गाइज ऐसा क्यों किया गया, बहुत लोगों के मन में भी ये डाउट होगा कि IABF ने सडनली ये चेंज क्यों कर दिया सिलेबस में, और बहुत लोगों के मन में ये भी बहुत सारे फियर्स होंगे कि कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करेंगे एंड ऑल दैट. सो उसी से रिलेटेड सारी बातें करेंगे आज हम. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू कोट वन सेइंग बाय जिम रोन दैट योर लाइफ डज नॉट गेट बेटर बाय चांस, it gets better by change. So you should always implement the change in you. You should not be the same, you should be better. You should try to be better always. आप जो आज हैं, आज को अपने को better कीजिए. You should try to be better than what you were before. Okay, so because see, for any progressive world, for your life also, for you to be progressive, the change is important. So ये चेंज भी क्यों किया गया IABF से, कंसिडरिंग द डायनेमिक्स ऑफ बैंकिंग. बैंकिंग इज़ अ वेरी डायनेमिक सेक्टर. इट चेंजेस वेरी रैपिडली. सो जब से जो लास्ट सिलेबस बनाया गया था वो काफ़ी पुराना सिलेबस था, और उसके बाद से बैंकिंग काफ़ी चेंज हो गया है और काफ़ी अपडेटेड हो गया है. बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ आए हैं, बहुत सारे फिनटेक कंपनीज आए हैं. सो कंसिडरिंग ऑल दोज थिंग्स, the IABF has come up with the revised syllabus and revised exam pattern so that candidates could be benefited from the revised syllabus, and they could be updated with the at par with the banking industry and at par with the dynamics and changes of the banking industry. Okay, so let's just get started with the video. Okay, and we have divided this video in some FAQs so that all of your doubts could be cleared. So जो पहला जो दिमाग में क्वेश्चन आता है, जो FAQ निकल के आता है कि when the first exam under the revised syllabus and pattern will be held. सो पहला एग्ज़ाम कब होगा रिवाइज्ड पैटर्न के अंदर एंड रिवाइज सिलेबस के अंदर. सो दैट विल बी हेल्ड फ्रॉम मई जून 2023 ऑनवर्ड्स. तो नवंबर दिसंबर 2020 वाला जो एग्ज़ाम है वो करंट सिलेबस के अंदर में ही रहेगा, जो ओल्ड सिलेबस है अपना, जो अभी करंटली चल रहा है. एंड गाइज, दिस इज़ द लास्ट चांस टू ग्रैब एंड लास्ट चांस टू क्लियर द एग्जामिनेशन. आई होप कि बहुत सारे लोग निकल जाएंगे इसमें. दे वोंट हैव टू गिव द एग्ज़ाम अंडर द रिवाइज सिलेबस. बट हावेवर किसी का अगर क्लियर नहीं होता है नवंबर दिसंबर वाले एग्ज़ाम, तो डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन ऑल्सो क्लियर द रिवाइज सिलेबस एग्ज़ाम ऑल्सो. ओके, एग्ज़ाम अंडर रिवाइज सिलेबस कोई रॉकेट साइंस नहीं है. जस्ट यू हैव टू मेक ए स्ट्रैटेजी. अच्छे से स्ट्रैटेजी बनाइए, डेडिकेशन से स्टडी कीजिए, एंड वी विल बी ऑल्सो कमिंग विद द वीडियोज़. ओके, वॉच वीडियोज़ ऑनलाइन, बहुत सारे चैनल्स हैं. And just clear your concept and give the exam. There won't be any issue, you can clear the exam. So इतनी ज़्यादा डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है कि नए सिलेबस में आप लोग क्लियर नहीं कर पाओगे. कोई भी फियर की ज़रूरत नहीं है. यू कैन ईजिली क्लियर द एग्जामिनेशन. बिलीव मी, you have to trust yourself, you have to trust your study, you have to trust your strategy. Just build your strategy around the syllabus and you can clear the exam, nothing else. Okay, so that's it from the FAQs. So November December is the last chance to grab. Just study hard. Okay, study with dedication. अभी से ही start कर दिया study, because you have what right now it's going September going on. So October November है आपके पास पूरा, तो 2 months में आप easily you can cover all the syllabus. Okay, और you can clear the exam. So November December में आप लोग exam clear कीजिए. Alright, so FAQ 2 जो है इसमें is there any changes in subject pattern of JIB and CIB under the revised syllabus? So answer is yes. सिलेबस में सब्जेक्ट पैटर्न में चेंज है JIB and CIB के. जैसे कि मैंने पहले भी कहा आप लोगों से कि पहले JIB में 3 पेपर्स होते थे, अभी रिवाइज सिलेबस में 4 पेपर होंगे. सो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग वो रहेगा.
अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स जो था, जो सब्जेक्ट था उसको चेंज करके अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स कर दिया गया है, बट दैट विल बी द सेम. ओके, more or less the topics modules will be same, and two more subjects has been added by the IABF. The one changes is Indian economy and Indian financial system, and the second one is retail banking and wealth management. इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा क्यों ये चेंजेस किया गया है IABF के द्वारा और कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं. ओके, लेट्स सी कि CIB में क्या क्या चेंजेस आए हैं. CIB में जो करंट सिलेबस था उसमें जो कंपलसरी सब्जेक्ट थे वो था एडवांस बैंकिंग मैनेजमेंट एंड BFM, दैट इज़ बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो रिवाइज सिलेबस में क्या कर दिया गया है, एडवांस बैंक मैनेजमेंट एंड बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये दोनों सेम रहेंगे. जो दो नए सब्जेक्ट्स जो ऐड किए गए हैं दैट इज़ एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉ. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन इन डिटेल कि क्या क्या इसमें जो मॉड्यूल्स होंगे और किस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड होंगे वो. ओके, एंड इलेक्टिव्स में यू मस्ट बी नोइंग, आप अगर गए होंगे PDF के थ्रू, you must have gone through the PDF which has been in notification by IABF. So उसमें रिटेल बैंकिंग को हटा दिया गया है. रिटेल बैंकिंग अभी जैसे कि पहले मैंने बताया JIB में रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट को डाल दिया गया है. सो CIB के इलेक्टिव सब्जेक्ट से रिटेल बैंकिंग को हटा दिया गया है. पहले क्या था कि छः सब्जेक्ट्स थे इलेक्टिव सब्जेक्ट्स इन CIB. नाउ इट हैज़ बिन changed to 5. So what will be the elective subjects? So rural banking, human resource management, information technology था पहले, उसको चेंज करके information technology and digital banking कर दिया गया है, and risk management and the central banking. So these 5 subjects will be elective. Okay, so let's go through the changed subjects. कौन कौन से subject change किए गए हैं, उसमें क्या modules होंगे. Okay, so जैसे कि मैंने बताया कि नया subject जो JIB में इंट्रोड्यूस किया गया है बाय IABF, दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. ओके, सो एज यू गाइज नो दैट अ स्ट्रॉन्ग एफिशिएंट फाइनेंशियल सिस्टम इज़ वेरी क्रिटिकल टू very critical to growth of any country. Okay, and banking by far is the most dominant segment of the financial system, and it really plays a pivotal role in the development of sound economy. So IABF has introduced to let you know what the Indian economic architecture is and what is the Indian financial architecture, what are the financial product and services in India, and all those economic concepts related to banking. Okay, आप देख सकते हैं इसमें मॉड्यूल भी है, इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू बैंकिंग, इंडियन फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है. सो इंडियन इकोनॉमिक आर्किटेक्चर में जनरली ये जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट, GDP एंड GNP अकाउंटिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे क्या हुआ था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब कब हुए थे, इन्फ्लेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी आपको, बिजनेस साइकिल, fiscal and monetary policy you will understand through this module. Okay, and you also understand tax structure of India and public finances of India under the Indian economic architecture and economic concept related to banking. Okay, and under the Indian financial structure you will get to understand what are the financial institution. So we have banking institution, we have non-banking institution, we have regulators, we have intermediaries, and we have also development institution like NABARD, SIDBI and all those development institution. So Indian financial architecture में ये सब देखने को मिल जाएगा आपको. And financial product and services में you will understand the financial products like call money, notice money, term money, treasury bills, corporate securities market, capital market related, primary market, and all those financial services like banking services, insurance services, investment services, forex services. So ये सब चीज़ें आपको मॉड्यूल D में फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंडर आप समझ सकते हैं उसको. जो दूसरा पेपर जो इंट्रोड्यूस किया गया है बाय IABF, दैट इज़ रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट. सो ऑब्वियसली यू ऑल नो व्हाट इज़ रिटेल बैंकिंग. रिटेल बैंकिंग ज़्यादातर लोग जो हम लोग बैंक में ज्वाइन करते हैं, so we actually do retail banking on daily basis. We open current account, we open savings account, we issue debit card, ATM cards, and credit cards also is the part of retail banking.
loans to consumer which we give, like home loan, car loan, property loan, and other consumer loans are also part of the retail banking. So they will introduce you to the retail banking and what are the retail products and recovery. So these will be under the retail banking, okay. And जिसने जिसने CIB में रिटेल बैंकिंग लिया होगा उसको पता होगा रिटेल बैंकिंग से रिलेटेड जो जो प्रोडक्ट है. सो it will be quite easy for you to crack. Retail banking and wealth management is not a not a tough subject to crack, so it will be easier for you. One more segment has been added, which is the wealth management part, which you are seeing as a new module. So under wealth management, it is also it is a part of the changing banking system, because हम लोग अभी बैंक में थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा क्रॉस सेल करते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, एंड वेल्थ मैनेजमेंट जानना बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू कुड गिव बेटर सजेशन टू योर कस्टमर्स रिगार्डिंग देयर वेल्थ, एंड you can you can manage their wealth better in terms of tax planning, in terms of their fund distribution, in terms of their loan management, okay. So these all these things you will learn under the wealth management chapter. And also you will learn banking and insurance product, fixed income and money market, equity and debt market, mutual fund basics, and debt management, estate planning, investment vehicles. So all these things you will learn under the wealth management chapter, okay. So let's see the changes in the CIB paper. So CIB में जैसे कि 4 पेपर अभी रहेगा कंपलसरी, उस 4 पेपर में जो 2 नए पेपर ऐड किए गए हैं, दैट इज़ एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड वन इज़ बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज. सो एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसीलिए ऐड किया गया है सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द एडवांस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ओके. Advanced concept of financial management, when I say it, I mean that you should understand the merger and acquisitions, you should understand advanced capital budgeting, and if I talk about the advanced capital budgeting, you will get to know, you will understand the net present value and the IRR, internal rate of return, ARR, accounting rate of return, discounted payback method, and then you will also understand the profitability index, modified IRR. So all those advanced concept of capital budgeting, and risk analysis in capital budgeting, sensitivity and scenario analysis in capital budgeting, dividend decisions, and also stock splits and stock bonuses. So all those things you will learn under the advanced concept of financial management, okay. You will also understand the portfolio management and the quantitative techniques. So the last module which you can see under the advanced business and financial management is emerging business solution. So if I talk about the emerging business solution, you will understand the concept of blockchain technologies and AI technologies, artificial intelligence, and how they can benefit the banking sector. So they are the emerging business solutions, okay. उसमें जो फिनटेक्स के थ्रू हम लोग बिजनेस सोल्यूशन दे पा रहे हैं, बैंकिंग सर्विसेज, बैंक्स लोग को लैंडिंग अरेंजमेंट कर रहे हैं, फिनटेक्स के साथ टाई अप करके थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स ऑफर कर रहे हैं. सो ऑल दीज आर पार्ट ऑफ द इमर्जिंग बिजनेस सोल्यूशन. सो यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स, ओके. बैंकिंग रेगुलेशन एंड बिजनेस लॉज में रेगुलेशन एंड कंप्लायंस से रिलेटेड चैप्टर्स होंगे. यू विल अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो रिलेटेड है बैंकिंग से, बैंकिंग ऑपरेशन से, जैसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, फिर NI एक्ट हो गया, एंड ऑल दोज एक्ट्स, सारफेसी एक्ट एंड एवरीथिंग विच आर एक्चुअली वाइटल टू बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डे टू डे banking and other laws related to regulatory compliances. So you will understand all those laws and important acts, okay. ये हो गया आपके जो चैप्टर्स हैं जो ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किए गए हैं. सो इतना ज़्यादा टफ नहीं है. इफ़ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू कैन ईजिली क्रैक द रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड पेपर्स ऑल्सो. सो इलेक्टिव्स में आई वुड नॉट गो थ्रू इन डिटेल बिकॉज यू ऑल नो यू आर वेल वर्स्ड विद ऑल दीज इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, बिकॉज ये सारे सेम हैं और इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं किया गया है. रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, येस इट वाज अर्लियर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ओनली जो
पहले जो इलेक्टिव सब्जेक्ट था उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते थे. नाउ डिजिटल बैंकिंग वन वर्ड हैज़ बीन एडेड टू द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सो नाउ इट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग. ओके, तो ये हो गया. सेंट्रल बैंकिंग था पहले से ही, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी था, रूरल बैंकिंग भी था. सो यू ऑल नो अबाउट इट, सो आई वुड नॉट गो इन डिटेल राइट नाउ. लेट्स मूव थ्रू द FAQ नंबर 3. सो FAQ नंबर 3 जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, अगर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट विल बी द एग्जाम पैटर्न, इज देयर नेगेटिव मार्किंग अंडर द रिवाइज सिलेबस? सो येस, द आंसर इज येस. एंड गाइज दिस इज द टफेस्ट पार्ट टू एब्जॉर्ब. मतलब बहुत लोगों को बिलीव नहीं हो रहा कि IABF ने नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस कर दिया है, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी टफ टू स्कोर नाउ. बिकॉज पहले क्या था कि हम लोग गेस वर्क्स भी करके आ जाते थे. वी कुड हैव डन सम गेस वर्क्स एंड वी वर सपोज टू गेट सम मार्क्स आउट ऑफ इट. ओके, लेकिन अभी वो बिल्कुल नहीं मिलेगा. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आपको यू कैन कॉन्फिडेंटली सेलेक्ट द ऑप्शन, अदरवाइज यू कुड लूज आउट ऑन एग्जिस्टिंग मार्क्स एज वेल. तो 25% जो मार्क्स अलॉटेड है वो आपका काट लिए जाएंगे अगर आपने गलत मार्किंग किया तो. सो सपोज 4 क्वेश्चंस हैं, उसमें आपके चारों सही हैं और अगला क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो उसमें का 1 मार्क्स का 0.25 काट लिया जाएगा. पर सो कितना बचेगा? तो आपको 5 में से 3.75 मिलेगा. जो एग्जिस्टिंग 4 मिले थे उसमें भी आपका 0.25 कट जाएगा. सो 3.75 आप स्कोर करोगे. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ, ओके, टू बी फ्रैंक, बट यू शुड नॉट बी डिसहार्टन, ओके, बिकॉज यू ऑल विल एडजस्ट बाय द टाइम. ओके, हम लोग को भी आदत हो जाएगा इस चीज़ का, एंड वी विल बी एबल टू चेंज, एडजस्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंगली. एंड जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए इफ़ यू गो एंड सिट फॉर द एग्ज़ाम. सो डेफिनेटली जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्फिडेंस है आपका, वो रहना चाहिए कि येस आई एम सेलेक्टिंग द राइट ऑप्शन. Again, if I talk about the CIB other change in exam pattern, so there may be some numerical question in some of the CIB subjects where no options will be provided. These question will not be in the MCQ pattern and the answer has to be keyed in by the candidate. So IABF ने कहा है कि कुछ जो क्वेश्चंस होंगे numerical question, उसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे. उसमें आपको कीबोर्ड के थ्रू पूरा जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना पड़ेगा. उसमें मिलेगा आपको एक बॉक्स दिया जाएगा पर क्वेश्चन में, और उसमें आपको कीबोर्ड के थ्रू टाइप करना है एंड आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन वो सॉल्व करना है. सो दैट इज़ सो लेट्स मूव टू द FAQ 4. Will credit for subject passed under the present syllabus be valid under new syllabus? तो जो आपने जो सब्जेक्ट ऑलरेडी पास कर लिया है वो क्या वैलिड होगा न्यू सिलेबस में? अगर प्रेजेंट सिलेबस में कोई आपने अगर पास किया है तो येस, क्रेडिट्स विल बी वैलिड, बट जो सब्जेक्ट्स हैं वो जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं उसी के लिए उसी में वैलिड होंगे. जो नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं IABF में उसमें नहीं होंगे. जैसे कि GIB में जो पुराने सब्जेक्ट्स थे, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर, इसी 2 सब्जेक्ट से क्रेडिट्स आपको न्यू सिलेबस में मिलेंगे. सो 2 जो नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया है GIB के अंदर, उसमें आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज दोज आर न्यू सब्जेक्ट्स, यू हैवंट पास्ड दैट, तो उसमें क्रेडिट मिलने का कोई सवाल ही नहीं उठता. CIB में द सेम केस है. ABM और BFM का क्रेडिट आपको मिलेगा न्यू सिलेबस के अंदर में, बट दूसरे जो 2 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए गए हैं उसका आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा. एंड इलेक्टिव में जो है रिस्क मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, सेंट्रल बैंकिंग, HRM एंड रूरल बैंकिंग, 5 में से अगर कोई आपने क्लियर कर लिया है तो उसका क्रेडिट आपको न्यू सिलेबस में मिलेगा. बट रिटेल बैंकिंग का नहीं मिलेगा सिंस इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड. तो वो डिसकंटिन्यू कर दिया है. रिटेल बैंकिंग अगर पास कर लिए हैं आप फिर भी उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. आपको नया CIB इलेक्टिव सब्जेक्ट इलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो दीज आर द चेंजेस. आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. सो FAQ 5 जो निकल के आता है, व्हाट विल बी टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन अंडर द रिवाइज सिलेबस? सो गाइज, जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 अटेम्प्ट्स मिलेगा फॉर कंप्लीटिंग द एग्जाम, बट दैट शुड बी विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, whichever is earlier from the time he/she registers for the exam. These 5 attempts need not be consecutive. ठीक है. सो 3 साल में कितने एग्ज़ाम होते हैं? 6 बार एग्ज़ाम होते हैं. तो वो 6 बार एग्ज़ाम में 5 अटेम्प्ट्स आप दे के निकाल सकते हो. ओके,
5 अटेम्प्ट्स विच एवर इज अर्लियर, 5 अटेम्प्ट्स आप कॉन्जिक्यूटिव दे के 2.5 साल में ही आपका 5 अटेम्प्ट्स क्लियर हो जाएगा, तो आप उसके बाद नहीं दे सकते, आपको वापस से री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सो 5 अटेम्प्ट्स ही मिलेंगे। पहले क्या था, प्रीवियस जो सिलेबस था उसमें 4 अटेम्प्ट मिलते थे आपको, इसमें 5 मिल रहा है, 1 अटेम्प्ट ज़्यादा मिल रहा है। ऑब्वियसली IIBF ने इतना डिफ़िकल्ट कर दिया तो 1 अटेम्प्ट तो बनता है अपना। सो IIBF ने ये आपको एक बोनस अटेम्प्ट दिया है करने के लिए विद इन अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years, ओके। और जो कैंडिडेट्स दोज हु आर अनेबल टू पास द एग्जामिनेशन विद इन द मैक्सिमम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड ऑफ 3 years और 5 अटेम्प्ट्स विच एवर इज अर्लियर विल बी रिक्वायर्ड टू री एनरोल देमसेल्फ फ्रेश। तो अगर आप 5 अटेम्प्ट या 3 साल में अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको वापस से री इनरोल करना पड़ेगा, अपने आप को वापस से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा JIB and CIB एग्जामिनेशन के लिए, ओके। सो टाइम लिमिट कब से स्टार्ट होगा? दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट। जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट करेंगे उस दिन से आपका स्टार्ट होगा। Attempts will be counted when he she applies for the exam, irrespective of whether the candidate appears for any exam or not. ओके अगर आप आपने एग्ज़ाम जैसे सपोज़ अभी मई जून 2023 में एग्ज़ाम आपने पहला अटैम्प्ट के लिए अप्लाई कर दिया, अगर आप उसमें नहीं भी बैठते फिर भी वो आपका वो एक 1 अटैम्प्ट काउंट होगा। सो यही IIBF ने यहाँ पे समझाया है कि वेदर यू अपीयर और नॉट फॉर एनी एग्जामिनेशन योर अटैम्प्ट विल बी काउंटेड, ओके। So don't miss the examination. I would urge you, give the examination and try to clear the examination in one go. So let's understand the validity of credits with some example which I have taken from the IABF notification. So guys, इसको जैसे ऐसे समझते हैं, जैसे सपोज आपने मई जून 2021 में पहले एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम। So you have already suppose you have already exhausted your attempts, 4 attempts. मई जून 2021 में पहला अटैम्प्ट था आपका, फरवरी मार्च 2022 में दूसरा, जून जुलाई 2022 में तीसरा एंड नवंबर दिसंबर 2022 में आपका चौथा ये सपोज अटैम्प्ट होगा। सो बैलेंस अटैम्प्ट क्या होगा आफ्टर नवंबर दिसंबर 2020 एग्जाम एज पर द प्रेजेंट सिलेबस, दैट विल बी नील, ओके। यू वोंट बी लेफ्ट विद any attempt. So attempt allowed as per the revised syllabus, time of 3 years or 5 attempts, whichever is earlier, okay. But since no attempts left as per the present syllabus, so candidates need to start afresh. तो अगर आपने ऑलरेडी सारे अटैम्प्ट्स एग्जॉस्ट कर लिए हैं अंडर द प्रेजेंट सिलेबस, सो न्यू सिलेबस में आपको कोई अटैम्प्ट नहीं मिलेगा मौका, कोई भी क्रेडिट रिटेन नहीं होगा आपका। सपोज आपने चौथे अटैम्प्ट में 2 सब्जेक्ट भी पास कर लिया हो, फिर भी आपको वो सब्जेक्ट का क्रेडिट नहीं मिलेगा। You have to start afresh, and from May June 2023 under the new syllabus you have to register for the fresh exam, okay. So second example लेते हैं, जैसे कि सपोज अपने नवंबर दिसंबर 2021 में जो कि एग्ज़ाम होता है फरवरी मार्च 2022 में एग्ज़ाम होता, उसके लिए पहला अटैम्प्ट था आपका, ओके। जून जुलाई 2022 में सपोज आपका दूसरा अटैम्प्ट था एंड नवंबर दिसंबर 2022 जो आने वाला है उसमें तीसरा अटैम्प्ट होगा आपका, सपोज अंडर द प्रेजेंट सिलेबस। तो आपके पास अटैम्प्ट कितना बचा? 1 अटैम्प्ट बचा, राइट। सपोज आपने नवंबर दिसंबर 2022 में 2 एग्जाम क्लियर कर लिए। सपोज आप JIB दे रहे हो और JIB में यू हैव क्लियर्ड प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो भी आपने क्लियर कर लिया है, ओके। तो इसमें क्या होगा कि केस 1 समझते हैं, आप जो क्रेडिट है वो रिटेन कर सकते हो जैसे, और विद बैलेंस अटैम्प्ट दैट इज़ 2 अटैम्प्ट्स और 1.5 year विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आपका प्रेजेंट सिलेबस जो है उसमें अगर 1 अटैम्प्ट बचा है आपका, तो जो न्यू सिलेबस में है आप वो क्रेडिट रिटेन कर सकते हो, दोनों जो सब्जेक्ट आपने पास किया है, और जो एक्स्ट्रा जो 2 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं वो 2 अटैम्प्ट जो न्यू सिलेबस के अंदर 2 अटैम्प्ट मिल जाएगा आपको, वो आप 2 अटैम्प्ट में क्लियर कर सकते हो, तो आपका JIB क्लियर माना जाएगा, ओके। सपोज केस 1 में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 1 बैलेंस अटैम्प्ट लेफ्ट एज पर द प्रेजेंट टाइम लिमिट रूल, hence he she will get to retain credits for past subject, okay, for 2 more attempts under the revised syllabus. So candidate is eligible to apply for any 2 out of the 3 exam to be conducted up to May June 2024. So फिर से एक बार समझा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा confusing है ये। अगर आपने सपोज नवंबर दिसंबर 2022 वाला जो JIB का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं या CIB का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी आप दे रहे हैं, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ JIB। सो नवंबर दिसंबर में अगर आप JIB वाला एग्ज़ाम दे रहे हैं और वो आपका तीसरा अटैम्प्ट है,
अगर आपने उसमें 3 पेपर में से सपोज 2 पेपर क्लियर कर लिया हो, 2 पेपर सिर्फ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बैंकिंग और जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है वो, तो वो अगर आपने कर लिया हो और आपके पास सिर्फ एक अटेम्प्ट बचा हो अंडर द प्रीवियस सिलेबस, मतलब जो ओल्ड सिलेबस है उसके अंदर आपका एक ही अटेम्प्ट बचा ना, तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू सिलेबस में वो जो दोनों एग्ज़ाम आपने क्लियर किया है उसके क्रेडिट आपके रिटेन हो जाएंगे, और अगला जो 2 पेपर इंट्रोड्यूस किया है नए सिलेबस के अंदर IABF ने, वो आप 2 अटेम्प्ट में क्लियर करके अपना JIB क्लियर कर सकते हैं। सो आपको एक अटेम्प्ट ज़्यादा मिल गया कंपेयरिंग टू प्रीवियस सिलेबस अंडर द न्यू सिलेबस। ओके, तो 2 अटेम्प्ट और 1.5 ईयर विच एवर इज अर्लियर। तो 1.5 ईयर में आपको मतलब तीन बार एग्ज़ाम होगा, तो तीनों बार एग्ज़ाम में से 2 बार एग्ज़ाम आप 2 अटेम्प्ट करके आप इजीली क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो यही इसमें बोला गया है। और केस 2 क्या हो सकता है, आप ही अपना जो क्रेडिट्स है, जो 2 एग्ज़ाम है, आइदर आप वो छोड़ के वापस से उसमें रजिस्टर कर लीजिए, आपको वो ऑप्शन मिलेगा, तो आपको फिर पूरा 3 साल मिलेगा और 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना क्रेडिट क्यों छोड़ोगे जब यू हैव ऑलरेडी इतना आपने मेहनत किया है और 2 पेपर को आपने क्लियर किया है। सो इट्स बेटर टू क्लियर 2 पेपर्स इन 2 अटेम्प्ट्स। ओके, ईजिली क्लियर हो जाएगा अगर आप लोग थोड़ा डेडिकेशन दिखाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर देंगे, तो यू कैन ईजिली क्लियर इट। ओके, सो दिस इज़ द वैलिडिटी ऑफ क्रेडिट्स। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट। ओके, लेट्स सी कि FAQ6 क्या बोलता है। सो व्हाट इज़ द पासिंग क्राइटेरिया अंडर द रिवाइज सिलेबस। सो गाइज मिनिमम मार्क्स सेम है, वो मिनिमम मार्क्स आपको 50 चाहिए आउट ऑफ 100 मिनिमम मार्क्स फॉर पास इन ईच सब्जेक्ट। बट अगर आप 45 मार्क्स इस सब्जेक्ट में 45 मार्क्स से ज़्यादा लेके आते हैं, एटलीस्ट 45 मार्क्स एंड अबव, और एग्रीगेट जो है सपोज चारों सब्जेक्ट का एग्रीगेट 50% मार्क्स आपका मिलता है, तो आप इसको सिंगल अटेम्प्ट में बोला गया है। ओके, सिंगल अटेम्प्ट विल ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड एज हैविंग कंप्लीटेड द एग्जामिनेशन। सो इट इज सेम एज इन द प्रीवियस सिलेबस। ओके, अदर चेंजेस क्या किया है वो देख लेते हैं। कैंडिडेट हु हैव नॉट क्लियर्ड CIB बट हैव पास्ड रिटेल बैंकिंग, ओके, अंडर द प्रेजेंट सिलेबस विल हैव टू सेलेक्ट अ न्यू CIB इलेक्टिव सब्जेक्ट। सो ये मैंने डिस्कस किया था शायद कि अगर आपने रिटेल बैंकिंग पास कर लिया CIB में अंडर द प्रेजेंट सिलेबस बट यू कुड नॉट क्लियर द CIB एनी हाउ, सो आपको नए सिलेबस में CIB का वो इलेक्टिव सब्जेक्ट भी वापस से क्लियर करना होगा बाय टेकिंग द अदर इलेक्टिव सब्जेक्ट, क्योंकि रिटेल बैंकिंग IABF ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। ओके, and the second changes which I would like to read out for you. Candidate will also have the choice to change their CIB elective subject. For example, if a candidate had opted for the CIB elective paper on rural banking for the May-June 2023 exam but had failed, can choose another CIB elective subject. So पहले क्या था कि जैसे आप अगर एक बार CIB कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट चुन लेते हैं तो चारों अटेम्प्ट में आपको सेम इलेक्टिव सब्जेक्ट रखना पड़ता है। बस इसमें क्या है कि अंडर द न्यू सिलेबस अगर आप सपोज May-June 2023 में आप चूज़ करते हैं रूरल बैंकिंग इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो आप नवंबर-दिसंबर वाले एग्ज़ाम में वो इलेक्टिव सब्जेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने वो पास नहीं किया और वो फेल हो गए तो यू कैन ईजिली change your elective subject in the next examination. Okay, so these were the changes. I hope you must have understood all the changes brought by the IABF, and IABF has worked hard on introducing in these new paper, and so that candidates could be benefited, because you should understand that you should be updated with all the dynamism and all the all the updation of the banking industry, because it has been changed a lot since the last syllabus. So I hope you must be understood. If you have any question, you can comment below. I would love to answer your I would love to clear your doubts. And so guys, we have come to an end. Thank you so much for watching. I hope you must have understood the concept of change in syllabus for JIB and CIB. अगर आपको कोई doubt है, you can comment your doubt below. I would love to clear your doubt regarding the changes in syllabus. And also we will be coming with the videos on how to clear
JIB and CIB under the new syllabus, okay, and we will be coming with the videos on newly introduced subjects and module wise, okay, so that you could be benefited from it. And we are also thinking of launching launching the course material of JIB and CIB. So definitely we will come up with that, and it will help the candidates clearing the examination. So thank you so much for watching. If you like the video, do subscribe and just press the bell icon so you could be notified on time whenever we come with some videos, okay. And we assure you that we will be coming with the videos on JIB and CIB, so that it would help you out in clearing the examination in November, December itself, okay. Please do subscribe. Thank you so much.